بٹتی ہے رحمت کی خیرات لو، دینی ماحول میں کر لو تم اعتکاف۔ الحمدللہ رونقیں تو فیضان مدینہ میں ویسے تو پورے سال ہی رہتی ہیں، لیکن اعتکاف کی رونقیں جو ہیں اس کی تو ایک الگ ہی اپنی ایک بہار ہے۔ شوبز سے وابستہ گلوکار، ڈائریکٹر، سنگر، کامیڈین، رائٹر، اسی طریقے سے ڈرامہ ایکٹر، ان لوگوں نے فیضان مدینہ میں افطار میں اور سحری میں مختلف اوقات میں ان کے آنے کا وزٹ کرنے کا جدول رہا، اور فیضان مدینہ میں جب ان لوگوں نے مدنی مذاکرے میں شرکت کی اور اس کے بعد الحمدللہ ان کی قسمت کا ستارہ چمکا، جانشین امیر اہل سنت نے ان شعبے سے وابستہ افراد کو وقت دیا۔ رمضان 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 رمضان۔ شوبز سے میرا تعلق ہے، ذاکر مستانہ میرا نام ہے، اور میں ایک مزاحیہ فنکار ہوں۔ ہنسانا میرا کام ہے، لوگوں کو اچھی بات کر کے، اور کوشش یہ رہتی ہے کہ دین سے بھی جڑے رہیں اور نماز کی پابندی بھی ہو، اور اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ اللہ تعالیٰ کا بڑا احسان ہے، میری کوئی طاقت نہیں ہے اس میں، کیونکہ یہ اللہ کا احسان ہے کہ ہماری کوشش ہوتی ہے کہ کوئی نماز نہ چھوٹے، نماز کی پابندی ہو۔ اور میں نماز کے حوالے سے سوال کروں گا آپ سے کہ مسجد میں جب ہم لوگ جاتے ہیں، اکثر لوگ مسجد میں جاتے ہیں اور کچھ حضرات سے یہ غلطیاں ہو جاتی ہیں، جان بوجھ کر نہیں کرتے، لیکن غلطی کا پتہ نہیں ہوتا کہ یہ غلطی ہو رہی ہے، تو کیا مسجد میں بلا وجہ ہنسنا یا بلا وجہ کی گفتگو کرنا یہ کیسا ہے؟ گناہ ہے؟ تو کچھ مسجد کے جو آداب ہے تو میں چاہوں گا تھوڑا سا آپ اس کے بارے میں تھوڑا سا عرض کیجیے گا، جزاک اللہ۔ آمین وإياكم۔ یہ ماشاءاللہ بڑی خوشی ہوئی کہ آپ ماشاءاللہ الکریم نماز کے حوالے سے آپ ماشاءاللہ زبردست سخت ہیں، یعنی کہ نماز پڑھنی ہے، کسی حال میں نماز نہیں چھوڑنی۔ جی کوشش۔ بالکل، یعنی واقعی نماز ہمیں کسی بھی حالت میں نماز ہمیں نہیں چھوڑنی، کہ یہ ہمیں پڑھنی ہے، فرض ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہم پر فرض کیا گیا ہے۔ اور دیکھیں کہ مسجد اور دیگر جو اللہ کے نا گھر ہے اس کا معاملہ الگ ہے، کہ جیسے ہم مسجد میں داخل ہوتے ہیں تو اللہم افتح لی ابواب رحمتک کہتے ہیں، پھر یہ کہ نویت سنت الاعتکاف کہتے ہیں۔ اب کیا ہے کہ رمضان ہو یا نہ ہو، جب تک ہم مسجد میں رہیں گے ہمیں اعتکاف کا ثواب ملتا رہے گا، جبکہ مسجد سے باہر یہ حکم نہیں ہے۔ حکم یہ ہے مسجد کے لیے کہ اسے پاگلوں اور بچوں سے بچاؤ، یعنی مسجد کو شور و غل سے بچاؤ، کہ شور ہم اس میں نہیں کریں گے۔ جب مسجد میں کاروبار کرنا یہ بھی ناجائز ہے، مسجد میں ہنسی مذاق کرنا اس کی بھی اجازت نہیں ہے، مسجد میں فضول گفتگو بھی ہم نہیں کریں گے۔ مسجد میں ہنسنا قبر میں اندھیرا لاتا ہے، ہنسنا۔ اب جب ہنسنا، اچھا ہنسنے کی تعریف کیا ہے کہ بندہ اتنی ہنسنے کی تعریف ہے کہ بندہ اپنی آواز اپنے کانوں سے سن لے، اگر برابر والا سن لے وہی ہنسی کی آواز تو یہ کہا، یہ کہا یہ نہیں کہ بندہ اتنی آواز سے ہنسے کہ یہ سب سن لیں، ایسا نہیں ہے۔ برابر والے نے سن لیا نا اتنی آواز سے ہنسا تو یہ ہے کہا۔ تو مسجد میں کہا لگانا تو پھر بدرجہ اولا، کہ ہنسنا جب قبر میں اندھیرا لاتے تو کہا تو زیادہ خطرناک ہے۔ رمضان 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 رمضان۔ آج فیضان مدینہ میں الحمدللہ اعتکاف میں ہمارے اسپورٹس سے وابستہ شخصیات اور شوبز سے وابستہ شخصیات، ہمارے ذمہ داران نے کوشش کی، اسپورٹس مجلس کے نگران ہمارے انہوں نے کوشش کی، اور فیضان مدینہ آئے ہیں، وزٹ ہوا، جان نشین امیر اہل سنت نے بیان فرمایا، کوسچن آنسر ہوئے، اور ابھی لائن لگی ہوئی ہے، یہ سب ان سے ملاقات کریں گے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ رمضان 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 رمضان۔ شوبز سے وابستہ شخصیات، اسپورٹس سے وابستہ کچھ افراد نگران شورا کی بارگاہ میں پہنچے ہیں، اور نگران شورا پوری دعوت اسلامی کو لیڈ کر رہے ہیں۔ انٹرنیشنل اسکالر جو ہیں وہ ہمارے نگران شورا ہیں، دنیا کے کئی ملکوں میں آپ کا سفر رہتا ہے، الحمدللہ آپ کے ذریعے سینکڑوں لوگ ایسے ہیں جنہوں نے اسلام قبول کیا، اور دنیا کے کئی ملکوں میں آپ نے دین متین کے لیے سفر اختیار کیا۔ رمضان 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 رمضان۔ ایک گاؤں کی بات کر رہا ہوں،
गांव में लोग बैलगाड़ी पर सामान ले जाते हैं, ले आते हैं, तो बाद एक बैल भी बंधा होता है, 2 बैल भी बंधे हुए होते हैं, और उस पर माल लोड करके एक गांव से दूसरे गांव, दूसरे से तीसरे गांव काम होता है। 2 बैल गाड़ी और 1 बैल चलाने वाले के अलावा एक और इनका पार्टनर होता है, एक कुत्ता होता है। कुत्ता उस बैलगाड़ी के साथ साथ हमेशा चल रहा होता है। मैं देखता हूँ कुत्ते का काम ही होता है कि बैलगाड़ी कहीं रुकेगी तो कुत्ता बैल की और सामान की हिफाजत, ये उस कुत्ते की ड्यूटी है। कुत्ता हमेशा बैलगाड़ी जब चल रही होगी तो नीचे दौड़ता रहेगा। एक दिन कुत्ते को खुशी हो गई, कुत्ते को खुशी में होगी कि मैं सारा बैलगाड़ी लेकर चलता हूँ, इतना सारा बोझ उठाता हूँ, और ये जो रुकती है जब बैलगाड़ी तो मेरा मालिक पहले बैलों को खाना खिलाता है, इसके बाद मेरे को पूछता है, खुद खाता है, फिर बैल खाते हैं, फिर मेरे को पूछता है। तो ये तो सही नहीं है। इसके दिमाग में भी हड़ताल आ गई, जिसने कहा कल सब हड़ताल एहतजाज, क्या एहतजाज? इसका एहतजाज निराला था। बोले जब कल बैलगाड़ी, जब भी बैलगाड़ी चलेगी ना, मैं चलूंगा ही नहीं। जब मैं चलूंगा नहीं तो मेरा सेठ बैलगाड़ी चलाएगा कैसे? अब अगला दिन आया, बैल चलने लगा और वही कुत्ता नीचे आकर बैठ गया। और कुत्ता बैठ गया, कुत्ता बोला मैं खड़ा ही नहीं हूँ, तो खड़ा होगा तो बैल चलेगा ना। ये कुत्ता बैठ गया और आप बंद करके बैठ कर देखो मेरे को मालिक बनाने आएगा, मेरी बिना समाजत करेगा, मेरे को खाना खिलाएगा। अच्छा, मालिक को समझ ही कुछ नहीं थी, वो तो बैल पर बैठा और बैल चलना शुरू हो गया, कुत्ता वहीं नीचे बैठा हुआ है। थोड़ी देर के बाद कुत्ते को धूप लगी, धूप की तरह आ गई, आम खोला तो बैल तो था ही ऊपर, थी भी ऊपर, वो देखा तो वो तो निकल गई। तो भागता भागता गया, फिर बैल के नीचे शराफत के साथ चलने लगा। तो उसको समझ आ गई कि बैलगाड़ी मैं नहीं चला रहा था, ये खुद चल गई, तो खुशी हो गई। इसको ये वहम था कि मैं आम था, इसको ये वहम था कि मैं अहम था। ये एक कब्र के खुतबे पर भी लिखा था, एक कब्र के खुतबे पर लिखा था कि मुझे ये वहम था कि मैं अहम था। हम कोई नहीं चल सकते, हमसे पहले भी सारा निजाम चल रहा है, हम हैं तो निजाम चल रहा है, हम नहीं होंगे तभी निजाम चल रहा होगा। तो ये वाकई वहम है कि हम अहम हैं, ना हम अहम थे ना हम अहम हैं, यानी हम इम्पोर्टेंट थे ना इम्पोर्टेंट है ना हम इम्पोर्टेंट हो सकते हैं। ये बातें बातों का हमारे अपने प्रोफेशन में भी आ जाती है, अपने इदारे में भी आ जाती है कि मेरी वजह से सब कुछ हो रहा है, मैं ही हूं तो ये हो रहा हूँ, मैं ही ये सब कुछ कर रहा हूँ, उसको मैंने बनाया है, उसको मैंने चलाया है, इसको मैंने संभाला है। वो तुम मर गए तो फिर क्या होगा? अब कौन चलाया, कौन संभाला? कितने आए, कितने चले गए, बड़े बड़े नाम आए, बड़े बड़े नाम रहे, लेकिन कब तक रहे? नाम चले जाते। हाँ, जिनके नाम अल्लाह पाक के दीन के लिए रहे, यानी इसको मैं आपको आसान कर देता हूँ, जिन्होंने अल्लाह के दीन को जिंदा रखने के लिए काम किया है, अल्लाह पाक ने इनके नाम को जिंदा रखा। ये उसूल और ये प्रिंसिपल याद है, फज़कुरूनी अज़कुरुकुम, तुम मेरा जिक्र करो मैं तुम्हारा चर्चा करूँ। कुरान करीम अल्लाह ने तो मेरा जिक्र करो मैं तुम्हारा चर्चा करूँ। हम जिक्र करेंगे अपनी औकात के मुताबिक अल्लाह का, और अल्लाह हमारा चर्चा करेगा अपनी शान के मुताबिक। तो ये कभी भी हमारे दिलो दिमाग में ये आना ही नहीं चाहिए कि मैं हूं तो कुछ है, ना फैमिली में, ना सोसाइटी में, ना इदारे में, ना अपने प्रोफेशन में। रमजान 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 रमजान। जी, मेरा नाम मोहम्मद सलमान आरिफ है और मैं ड्रामा इंडस्ट्री पाकिस्तान से ताल्लुक़ रखता हूँ। कैसा फील किया आज फैज़ान मदीना आए, क्या कुछ सीखने को मिला, इसके हवाले से अपने थोड़े से व्यूज़ दीजिए।
देखें मैं इस वक्त यहाँ पे फैज़ान मदीना में मौजूद हूँ और यहाँ पे आने के बाद जो मेरी फीलिंग्स है बिल्कुल ही अलग हैं, ठीक है ना। ऐसा लग रहा है कि मैं बस रूहानियत ही रूहानियत है यहाँ पे माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। और यहाँ पे आने के बाद हमें बहुत कुछ सीखने को मिला, बहुत सारी चीज़ें जो हमें नहीं मालूम थी वो हमें मालूम हुई कि हम कहाँ कहाँ मिस्टेक कर रहे हैं। और ये माशाल्लाह दावत इस्लामी जो काम कर रहे हैं वो इतना आउटस्टैंडिंग काम है कि आपको मैं बता नहीं सकता, मतलब कि बहुत ज़बरदस्त काम माशाल्लाह दावत इस्लामी कर रही है। मज़ीद यहाँ से क्या अच्छी नीयत लेकर जा रहे हैं, क्या इंटेंशन लेकर जा रहे हैं? आपकी निगरानी शूरा से मुलाकात हुई, जानशीन अमीर सुन्नत से आपने टाइम लिया, मुलाकात की, तो इस हवाले से भी अपने तासुरात का इज़हार कीजिए कि उन दोनों से जो मुलाकात हुई आपके क्या व्यूज़ हैं और यहाँ से क्या अच्छी नीयत लेकर जा रहे हैं? अच्छी नीयत यही है कि बस नमाज की जो है वो इंशाअल्लाह ताला प्रॉपर तरीके से पाबंदी करनी है, क्योंकि नमाज बहुत अहम है। और जिस तरीके से माशाल्लाह यहाँ पे आए हमें और मज़ीद मालूमात मिली, ठीक है ना। और ये है कि अब इंशाअल्लाह नियत कर रहे हैं कि एतिकाफ़ की भी नियत कर रहे हैं इंशाअल्लाह ताला। हो सकता है आखिर के 10 दिन जो है वो फैज़ान मदीना में जो है वो एतिकाफ़ की नियत है मेरी। इंशाअल्लाह अगर पॉसिबिलिटी हुई तो ज़रूर मैं एतिकाफ़ में नियत। नाम है मेरा ज़ाकिर मस्ताना, आपका जाना पहचाना। और आज माशाल्लाह हम दावत इस्लामी इस मदनी माहौल में आए और यहाँ पे माशाल्लाह जो लोग एतिकाफ़ में बैठे हुए हैं और मज़ीद जो फैज़ान मदीना लोग आ रहे हैं। और आज मैं और दीगर आर्टिस्ट भी यहाँ पर आए और माशाल्लाह और आना जाना सबका लगा रहता है। हमें आके बड़ा अच्छा लगा यहाँ पर और इंशाअल्लाह अब हमारी आमद है यहाँ पे, इंशाअल्लाह आते रहेंगे। और इसी तरह जो मोहब्बतें रहमतें यहाँ पर जो हैं वो हम भी लूटते रहेंगे। रमज़ान 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 रमज़ान। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु ताला अला मोहम्मद। सिंध के शहर का नाम आपने सुना होगा नवाब शाह, शाहों का शहर। नवाब शाह वो शहर है जो आशिकों का शहर है, मिलाद मनाने वालों का शहर है, दुरूद की कसरत करने वालों का शहर है। सिंध का मशहूर शहर अल्हम्दुलिल्लाह नवाब शाह फैज़ान मदीना में जो आशिकान रसूल एक महीने के एतिकाफ़ में बैठे हैं। आइए चलते हैं हम नवाब शाह की तरफ और वहाँ पहुँचकर आपको एतिकाफ़ में क्या अपडेट हैं ज़व्वार भाई की तरफ चलते हैं। जी ज़व्वार भाई बताइए एतिकाफ़ किस अंदाज से नवाब शाह में हो रहा है? आपने हैदराबाद की अपडेट दी, अब हम आपसे नवाब शाह की अपडेट लेना चाह रहे हैं। जी सैयद मोहम्मद आरिफ अत्तारी साहिब इस वक्त मौजूद हूँ फैज़ान मदीना गुलशन मदीना नवाब शाह में। यहाँ भी मोतकिफ़ीन जो है वो कसीर तादाद में जो है वो एतिकाफ़ किए हुए हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे साथ ये टीम मौजूद है कि जो माशाल्लाह इनके लिए सहरी का इंतज़ाम करती है, इनकी इफ्तारी का इंतज़ाम करती है और उनके जो भी मोतकिफ़ीन के जो भी यहाँ के मामलात हैं वो अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पे देखते हैं। आइए इनके निगरान से बात करते हैं और पूछते हैं कि यहाँ के जो मैनेजमेंट है वो किस अंदाज से चल रही है और किस अंदाज से ये माशाल्लाह इस पूरे एतिकाफ को मैनेज कर रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पे माशाल्लाह मोतकिफीन एतिकाफ किए हुए हैं और माशाल्लाह आपकी टीम भी आपके साथ मौजूद है। मदीना चैनल के नाज़रीन को क्या कहना चाहेंगे और किस अंदाज से आप इस पूरे एतिकाफ को मैनेज कर रहे हैं? माशाल्लाह हमारी पूरी टीम है, ये सहरी इफ्तारी का इंतज़ाम करती है और यहाँ पर ये इस्लामी भाई को खाना बहुत अच्छे अंदाज से डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, तकसीम करते हैं, हर इस्लामी भाई को खिलाते हैं। और मदनी मुज़ाकरा मजलिस भी हमारे साथ है जो मदनी मुज़ाकरे का एहतमाम करती है। हर इस्लामी भाई अपने अपने तौर पर बड़ी मेहनत करते हैं, माशाल्लाह बहुत अच्छे तरीके से इसको लेकर चलते हैं निज़ाम को। जी नाज़रीन अल्हम्दुलिल्लाह आप यहाँ देख रहे हैं कि किस अंदाज से मैनेज किया जा रहा है। चूँकि ये अल्लाह के मेहमान हैं, अल्लाह के घर के मेहमान हैं और पूरे माह रमज़ानुल मुबारक का एतिकाफ़ किए हुए हैं। अल्लाह ताला से दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला इनकी टीम को जो है वो खूब बरकत अता फरमाए। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे साथ मदनी मुज़ाकरा ज़िम्मेदार भी मौजूद हैं। आइए इनसे पूछते हैं कि मोतकिफीन के दरमियान जो दो मदनी मुज़ाकरे होते हैं कि तरावी शरीफ के बाद और एक असर की नमाज के बाद, वो किस अंदाज से ये लोग मैनेज करते हैं? अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह यहाँ बहुत अच्छा एहतमाम किया गया है मदनी मुज़ाकरे के हवाले से। असर की नमाज के फौरी बाद इस्लामी भाई मदनी मुज़ाकरे के लिए हाजिर हो जाते हैं और अल्हम्दुलिल्लाह अपडेट होके और बड़ी दिलचस्पी के साथ मदनी मुज़ाकरे में शिरकत करते हैं और बहुत अच्छी अच्छी नियतें होती हैं। अमीर सुन्नत के ये प्यारे प्यारे मदनी फूल और आपके अल्हम्दुलिल्लाह मदनी फूलों की बरकत से उस पर ये अमल भी करते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह अमल करते हैं और उसकी बाकायदा इसको सुन्नतों को आम भी कर रहे हैं। आपस में एक दूसरे को सीखने सिखाने का सिलसिला भी जारी है अल्हम्दुलिल्लाह। और इशा के बाद तरावी के बाद भी रोज़ मदनी मुज़ाकरा हो रहा है, इसमें भी बहुत कुछ अमीर सुन्नत से सीखने को मिल रहा है। इस्लामी में बड़े दिलचस्प
दिलचस्पी के साथ अल्हम्दुलिल्लाह ये नौजवान इसमें शिरकत करते हैं, बैठते हैं और आपस में भी एक दूसरे को जो मदनी मुज़ाकरे में सीखते हैं वो एक दूसरे को खुद भी सिखाते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। माशाल्लाह यहाँ आकर बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत कुछ सीखा है यहाँ अल्हम्दुलिल्लाह। सुन्नतें सीखी, बाद जमा नमाज पढ़ने का तरीका सीखा, नमाज का तरीका सीखा, बल्कि वक्त की पाबंदी सीखी, चलने की सुन्नतें, बैठने की सुन्नतें, खाने की सुन्नतें, ऐसा समझे सुन्नतों की बाहर है यहाँ पे अल्हम्दुलिल्लाह। और यहाँ का माहौल देखकर अल्हम्दुलिल्लाह मैंने भी जामियातुल मदीना ज्वाइन करने का इरादा कर लिया है। और ये देख रहे हैं इमाम शरीफ, दाढ़ी शरीफ, ये भी अल्हम्दुलिल्लाह यहीं पे आकर नियत की है। पहले इमाम शरीफ का नहीं पता था, अभी जो दावत इस्लामी आए और इत्काफ में आए तो माशाल्लाह इमाम शरीफ का नियत की है, तो जैसे बांधा है तो अभी तक माशाल्लाह वो हर वक्त बांधे हुए, इंशाल्लाह इसको कायम रखेंगे और जब घर जाएंगे तो दूसरों को भी ये दावत देंगे तो इमाम सजाए। नमाजें सीखी और दूसरे यही के गांव जाऊंगा, दूसरे आदमियों को बताऊंगा ये ऐसा है, फैज़ान मदीना का फैज़ मिला है माशाअल्लाह। नवाबशाह में आज जो है ये तकरीबन मेरे जो इधर एतिकाफ में हैं तकरीबन 81 से 85 शुरका मौजूद हैं और अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पर इनको जो है पहले दिन से ही एक इनका जदवल बनाया गया। अल्हम्दुलिल्लाह मदनी मरकज़ की तरफ से हमें एक जदवल अता किया गया कि जिनमें इनके बाकायदे जैसे क्लास में पीरियड्स लगते हैं ना, इसी तरह ये पीरियड्स दिए गए हैं। अल्हम्दुलिल्लाह इनमें बाकायदे इनको आराम का टाइम भी दिया जाता है, इनके नमाज के अहकाम, नमाज का अमली तरीका और जो दीगर इनके ज़रूरियात और फ़र्ज़ उलूम वगैरह हैं वो इनको सिखाए जाते हैं। बिलखुसूस जिनका कुरान पाक दुरुस्त नहीं है उनको दुरुस्त मखारिज के साथ कुरान पाक सिखाया जाता है अल्हम्दुलिल्लाह। और मदनी कायदा उनके बाकायदे जो मदरसतुल मदीना के टैलेंटेड कारी साहिबान हैं वो यहाँ पर आते हैं और यहाँ पर इनके मखारिज चेक करते हैं, जिनकी गलतियाँ होती हैं, गलत होती हैं तो उनकी गलतियाँ दुरुस्त करवाई जाती हैं। रमज़ान 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 रमज़ान। कई सालों पहले इनसे मुलाकात हुई थी ना, इनके चेहरे पे उस वक्त इस तरह दाढ़ी भी नहीं थी, इस तरह इमामा भी नहीं था। आज माशाल्लाह दाढ़ी भी है, इमामा भी है। सलीम भाई, दावत इस्लामी आपको कहाँ मिली? दावत इस्लामी तो अल्हम्दुलिल्लाह जब से होश संभाला, जब से मिली हुई तारुफ था। फिर इसके बाद मेरा बाहर जापान जाना हुआ तो वहाँ पर दावत इस्लामी इचिकावा स्टेशन पे जो है इज्तिमा होता था तो वहाँ पर अल्हम्दुलिल्लाह हाज़री हुई। फिर मुस्तकिल आना हुआ। फिर पाकिस्तान जब आ रहा था तो वहाँ के ज़िम्मेदार ने कहा कि जापान में, यानी जापान के ज़िम्मेदार ने आपको बोला? जी, जापान के ज़िम्मेदार वहाँ पर जो है इमरान भाई थे, उन्होंने मुझे कहा कि आप पाकिस्तान जा रहे हो, हज़रत साहब से मिलोगे। उस वक्त इस्तिलात हज़रत साहब थी तो हाजी मुश्ताक रहमतुल्लाह अलैह, अल्लाह ताला उनकी मज़ार पर अपनी करोड़ रहमत नाज़िर फरमाए, उन्होंने जो है मिलवाया। अमीर अहले सुन्नत की बारगाह में हाज़िर हुई PIB कॉलोनी में। अल्हम्दुलिल्लाह अमीर अहले सुन्नत ने गले लगाया और अल्हम्दुलिल्लाह उस गले लगाने की बरकत से जो है आज आपके सामने हूँ और अल्हम्दुलिल्लाह इस वक्त 1 साल के काफ़िले में हूँ। तो ये इस्लामी भाई देखें, जापान में दावत इस्लामी के जो ज़िम्मेदार थे उन्होंने इन पे कोशिश की और जापान से आए हुआ नौजवान इस्लामी भाई कई सालों पहले ये माहौल में आ गए। अल्हम्दुलिल्लाह अभी 1 साल के काफ़िले में हैं। अल्लाह आपको भी इस्तिकामत दे, दीन पर मुझे भी इस्तिकामत दे और हमारा ईमान पे ख़ात्मा आफ़ियत से मदीने में हो। रमज़ान 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 रमज़ान। आज के प्रोग्राम में आपको यकीनन बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। ये थी अब तक की एतकाफ़ की अपडेट और मज़ीद एतकाफ़ की अपडेट आपको अगले प्रोग्राम में देंगे। आज तक के लिए हमें इजाज़त दें, दोबारा इंशाल्लाह मैं हाज़िरी दूँगा। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आओ बटती है रहमत की खैरात लो, दीनी माँ